So, hello everyone. Today we are going to begin with a new chapter, that is life processes. It is the first chapter of biology in grade 10. So, before we start, I would like all of you to take a deep breath. You just did it without even thinking. That means your body, your lungs are supplying oxygen to the blood. Your blood is flowing throughout your body cells, supplying nutrients, oxygen wherever required. And even if you miss or skip any meal of the day, your body is still trying to produce lot of energy. So what does it indicate? There are many logical processes, metabolic processes which are happening on their own within your body, and that is what is known as life processes. इसी को हम क्या बोलते हैं? Life processes. And in today's class, I will be covering the first life process, that is nutrition. So we will be learning about nutrition in plants, and then we will be moving to nutrition in animals. So in today's class, we will be learning about nutrition in plants. So let's start. टेंशन स्ट्रॉन्ग करनी होती है. क्या बोल रहा है टीचर, ध्यान से सुनना होता है. What is it, Aratya? What is respiration? Oxidization of food. Again using wrong word. It is oxidation of food, not oxidification, not oxidization. It is oxidation of food. Addition of oxygen. वही गलती हो रही है. Transportation is or your circulatory system. Heart is an organ which helps the blood to get transported. Blood को कौन push करता है? Heart push करता है. Right? Excretion is done by kidneys. Control and coordination is the मैनेजमेंट एंड वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल सिस्टम्स. ये सारे प्रोसेसेस एक साथ कैसे काम करते हैं, ये किससे पता चलता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. यू लर्न अबाउट द ग्रोथ एंड यू लर्न अबाउट द मूवमेंट्स एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है. नाउ why do we need life processes? क्यों चाहिए? There are two primary things which help us to know. First, to ensure the existence of organism. Yes or no? अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं. विल एनी ऑर्गेनिज्म बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? नो. जितना भी एडिपोज टिश्यू में फैट रिजर्व है, जब तक वो यूटिलाइज होता रहेगा तब तक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाएगा. वंस इट इज ऑल्सो फिनिश, वो बैंक फिनिश हो जाएगा तो सर्वाइवल विल बिकम difficult, very difficult, right? And also to prevent the damage and breakdown of the body. What do you mean by damage and breakdown of the body? Yes, breakdown of cells which happens post 30. 30 के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है. तो उसके बाद किसने हेल्प होती है? रिपेयर में. लाइफ प्रोसेसेस क्या करती है? रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यू. इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक फंक्शंस हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करने होते हैं टू मेंटेन देयर लाइफ. अब ये दो पर्पस सॉल्व कर रहे होते हैं. वो पर्पस क्या है? ensuring the existence of that organism, and second to prevent the damage and breakdown of the body parts. ठीक है. वो body organ parts क्या हैं? body cells हैं, आंशिक tissues हैं, आपके organs हैं. ठीक है. Okay, before we move ahead, I would like to ask very simple question. Whenever we fall sick, doctors, mostly people, elders, doctors, they always recommend us to eat lot of khichdi. Yes or no? They put you on a diet. आप हॉस्पिटल में कोई होता है तो उनको क्या सर्व किया जाता है? Either they serve खिचड़ी or they serve fruits और दलिया. ये दो तीन चीजें porridge, right? ऐसा क्यों होता है? मैम क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. Is it the only reason? Is it the only reason कि कुछ जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है? हाँ, बॉडी को ज्यादा डाइजेस्ट करने में बॉडी मतलब ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने प्रोटीन्स एफर्ट्स जो सिक है उसके सेल्स ब्रेक आउट है फिर जो भी हुआ है उसको रिपेयर करने के जो भी मतलब क्या हुआ है, एफर्ट बॉडी उसमें नहीं लगाती ज्यादा डाइजेशन में ज्यादा. ओके. इट इज इजी ऑन आवर गट. इट इज इजी ऑन आवर गट. ठीक है. गट से क्या मतलब होता है? इज इट द स्टमक ओनली? गट से क्या मतलब होता है? गट मतलब आप एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ मूव करती है? माउथ से एनस तक. एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ मूव करती है?
माउथ से एनस, क्योंकि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? माउथ में. वी च्यू द फूड प्रॉपरली बिफोर वी टेकिंग इट इनटू आवर ईसोफेगस. सो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से. तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ जाता है? माउथ, then esophagus, then stomach, stomach to small intestine and large intestine, rectum and hallux. तो ये सारा क्या? एलिमेंट्री कैनाल. और एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या बोलते हैं? गट. क्या बोलते हैं? गट. सो यस, द फूड इज इजी ऑन आवर बट. अब इसको समझो कि बाय डू डॉक्टर्स प्रेफर. अब इसके बाद आंसर करेंगे हम. फूड इज एक्टिंग एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. फ्यूल क्यों बोल रहे हैं हम उसको? फ्यूल किसको बोलते हैं? जब वो चीज ऑक्सीडाइज होती है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है. जैसे कार को फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए, किसी भी फॉर्म ऑफ फ्यूल चाहिए, किसी भी व्हीकल को चाहिए. अब वो होता क्या है? व्हाट डज हैपन विद द फ्यूल? क्या होता है? इंजन बाकी रहता है उस फ्यूल को. फ्यूल ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज करके वो फ्यूल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. तो ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस एनर्जी. सो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आल्सो प्रोड्यूसेस एनर्जी. इसी वजह से हम फूड को क्या बोलते हैं? फ्यूल. फ्यूल, राइट. और फूड हमें कब चाहिए? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म even during sleep, carrying out any biological processes. Biological processes मतलब हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, कोई भी ऐसा प्रोसेस कैरी आउट करने के टाइम पर क्या चाहिए होती है? एनर्जी. और वो एनर्जी प्रोवाइडर कौन है? फूड, राइट. और कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है उस एनर्जी को बनने में? Which process helps to convert energy? रेस्पिरेशन. ये भूल रहा लेकिन इसलिए बार बार बोल रहा है, उसमें गलती नहीं करनी इसलिए बार बार बोल रहा है. सो व्हाट इज द जर्नी ऑफ फूड चिल्ड्रन? First we intake the food, we consume the food, then what happens in our body? Our body starts utilizing the food. And when the food is being utilized by our body, what is being produced? क्या produce हो रहा है? Liberation of energy, which is required to carry out any sort of activity. ठीक है. कोई भी सिर्फ एक्टिविटी वो नहीं कि आपको चलने को चाहिए, आपको खेलने को चाहिए, आपको पढ़ने को चाहिए, आपको सोने को चाहिए. ये तो सारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैं. बट देयर आर मेनी इंटरनल एक्टिविटीज विच आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी. कौन सी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हो रही है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, डाइजेशन हो रही है, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, राइट. ग्रोथ हो रही है. तो इन सब के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी किससे मिलती है? फूड. बॉडी सेल्स प्रिपेयर हो रहे हैं. यस. कहीं गिरते हो, चोट लगती है, पूरे टाइम में हील हो जाती है. कौन रिस्पॉन्सिबल है रिपेयर के लिए? कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्किन रिपेयर हो गई ना. हैप्पी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोल सकते हैं हम स्किन को ऐसे. अब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम रिपेयर हो गया. तो ये टिश्यू है, ये टिश्यू रिपेयर हो गया ड्यूरिंग इंजरी. तो ये टिश्यू कैसे रिपेयर हो गया? फूड की वजह से रिपेयर हो. क्योंकि फूड ने क्या प्रोवाइड कर रखे हैं? न्यूट्रिएंट्स. सिर्फ एनर्जी नहीं, एनर्जी नहीं, फूड का काम सिर्फ एनर्जी. यू ईट 5 फिंगर फूड. यू नहीं, आई ऑल्सो ईट. वी ईट 5 फिंगर फूड, राइट. सो जल्दी से बताओ 5 फिंगर फूड क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी दैट 5 फिंगर फूड? कार्बोहाइड्रेट, कार्ब, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल. तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं, फर्स्ट टू थंब एंड माय फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर, ये दोनों क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी. बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोटीन्स, व्हेन यू टॉक अबाउट विटामिन्स, व्हेन यू टॉक अबाउट योर मिनरल्स, these 3 finger food helps in repairing of the body cells and growth and development. Is this clear? क्या ये बात समझ में आई? मतलब सारा का सारा न्यूट्रिशन और फूड सिर्फ एनर्जी नहीं दे रहा, कुछ पार्ट एनर्जी देता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट. कार्बोहाइड्रेट्स आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट्स आर द एनर्जी रिजर्व. दोनों डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे किसी को लो फील हो रहा होता है तो ग्लूकॉन डी पिला देते हैं बच्चों को, गर्मी भी बहुत ज्यादा खेल, तो उसमें क्या रहे? इट इज ऑलरेडी वाटर सोल्यूबल. तो जो काम ग्लूकॉन डी क्यों पीते हैं? सोचा करो, क्यों पी रहे हो ग्लूकॉन डी?
टू गेट इंस्टेंट एनर्जी। वो इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिल रही है? जो काम डाइजेशन करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, बार बार फूड पहले माउथ में ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर स्टमक में हो रहा है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में हो रहा है, फिर वो जाके ब्लड में पहुंच रहा है, तो इट टेक्स 3 आवर्स। अब वो 3 आवर्स का टाइम तो है नहीं है, द पर्सन इज गोइंग टू फेंट और फीलिंग लैक ऑफ एनर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं बॉडी को, जिससे क्या प्रोवाइड हो जाता है, इंस्टेंट एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस? मेजरली डाइजेशन का पर्पस क्या होता है, वाटर सोल्यूबल फूड बनना। सो एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय nutrition, absorbed by digestion, broken down by oxygen acquired through respiration, carried by transportation, and we get rid of waste by excretion. ठीक है? एनर्जी कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से। एब्जॉर्ब कब होगी? जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और उसको ब्रेक डाउन कैसे करोगे? ऑक्सीजन के साथ, रेस्पिरेशन के थ्रू। और जो भी वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनेगी, वो कौन कैरी करेगा? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से। और जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, वो कैसे हम उसे, how do we get rid of that waste? That is by excretion. Have you understood this, everybody? You need time to write down, to jot down the points, or shall I move ahead? थोड़ा सा टॉपिक और करवा लोगे? Okay. You want to write down, or shall I move ahead? Go ahead. Move ahead. Okay, I can hear move ahead. Now, nutrition. Nutrition में क्या है बेटा? Nutrition is process. जिसके पीछे शन आता है ना, वो क्या होती है? Process. Nutrition क्या है? एक process है। अब process क्यों बोल रहे हैं? Process का क्या मतलब होता है? वापस से सोचो, क्या समझाया था? Process तो क्या है? स्टीरी टाइप्स में हो रहा है। इन सब में क्या हो रहा है? इनटेक हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रही है, और यूटिलाइजेशन के बाद इट इज हेल्पिंग इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है? तो न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, utilizing it to provide energy and performing various metabolic activities. ठीक है? Nutrition is a sum of process of intake and utilization of nutrients. Are we able to see here? Are we able to see here? Tell me, what is nutrition? Process of taking in food. What is it? Process of taking in food, utilizing it to provide energy. अब ये बात ध्यान रखना, जब बोर्ड चेकिंग होती है और जो बोर्ड चेकर्स जब चेक कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी मैं अभी जो बच्चों ने अभी अभी एग्जाम दिया है, आई वॉज एक्सप्लेनिंग देम, आई वॉज शोइंग देम द मार्किंग स्कीम। उनको जो मार्किंग स्कीम मिलती है, मार्किंग स्कीम का मतलब समझते हो, आंसर की जो प्रोवाइड होती है, उसमें कीवर्ड्स होते, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अपना है, वो अपने अपने तरीके से लिखेगा। बट अगर आपके कंटेंट में वो कीवर्ड मिल जाता है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आप काफी सारी स्टोरीज बना के आ रहे हो एंड यू आर नॉट राइटिंग द कीवर्ड इनटू दैट, यू विल एंड अप लूजिंग। तो कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान रखना। जैसे आप फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हो, दैट इज द न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक, हाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी आएगा, वी आर कमिंग टू दैट। न्यूट्रिशन क्या है? एक, सबसे पहले शन है तो ये क्या होगी? प्रोसेस। ये ध्यान रखना है, क्योंकि डेफिनेशन क्रिएट करो, रट्टा नहीं लगाओ, उसको समझो और खुद से क्रिएट करो। शन है तो ये क्या है? एक प्रोसेस। अब प्रोसेस किस चीज का क्या कर रहे हैं हम इसमें? इंटेक ऑफ फूड हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? इंटेक ऑफ फूड। अब फूड को लेने के बाद हम उस फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और फिर हम क्या कर रहे हैं उससे? वी आर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब डाइजेशन होना, मतलब रेस्पिरेशन होना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होना, मतलब एक्सक्रीशन होना। समझ में आ रहा है? जो भी प्रोसेसेस आपकी बॉडी में हो रही है, वो सारी प्रोसेसेस हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है? अब समझो आगे। तो आपका न्यूट्रिशन में क्या हो गया? न्यूट्रिशन में दो चीजें मेजरली हो रही है, प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्यों करना है हमें न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन? बॉडी को क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि उसको परफॉर्म करनी है। क्या परफॉर्म करनी है? वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या परफॉर्म करना है? वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हाँ भी क्लियर? Now we go back to the nutrient. Nutrition is process of taking in food. And what does that food contain? Nutrient.
What does that food contain? Nutrient. अब न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। अब इसका मतलब समझो, बायो का ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक अलग अलग, ठीक है। अब लेकिन इसमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है वो केमिस्ट्री वाला, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड मॉलिक्यूल। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की, मतलब ये ऐसा फूड मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन प्रेजेंट, ठीक है, और ये ऐसा फूड मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं फैट्स की, प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की, तीनों में कार्बन हो, बट व्हेन वी टॉक ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स उसमें कार्बन नहीं होता। तो फैट्स, प्रोटीन्स and carbohydrates are what kind of substances? Organic substances. And vitamins and minerals are what kind of substances? Inorganic substances. क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये क्षण था तो ये प्रोसेस थी, ये क्षण नहीं है, ये एक सब्सटेंस है। ये क्या है? एक सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस? ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जो एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करेगा, कहाँ से ऑब्टेन करेगा? जल्दी बताओ। सराउंडिंग से। वी ऑल आर ऑर्गेनिज्म, वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिक। अपना फूड कहाँ से लेंगे? सराउंडिंग से। And there are two sources of food from the surrounding. One is plant and other one is animals. एक source of food क्या होता है? Plant और दूसरा क्या होता है? Animals. Now see, so it obtains, organism obtains food from the surrounding. और obtain करने के बाद क्या कर रहे हो आप? Use कर रहे हो. Utilization of the food, right? You are using it as a source of energy. And you are also using it for the biosynthesis of body constituents. Let me put it in front of you, the whole definition which has been missed out. Okay, is it visible? No, not now. Tell me, is it visible? Is it visible, children? Okay, thank you for responding. So, nutrient क्या है? Breakdown. Breakdown. Nutrient क्या है? मन में सोच लो, न्यूट्रिएंट क्या है आपके लिए? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या फिर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है। कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है? सराउंडिंग्स से ऑब्टेन कर रहा है। अब सराउंडिंग में से ऑब्टेन करके वो उसको क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा। क्यों करेगा? दो काम के लिए करेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं? इंग्लिश वर्ड है, पार्ट ऑफ द बॉडी। अब पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है? बॉडी सेल्स हैं, बॉडी टिश्यूज हैं। उनके फॉर्मेशन के लिए भी आप किसको यूज करते हो? फूड को यूज करते हो, राइट। तो न्यूट्रिएंट क्या है? दोबारा से बोलो। न्यूट्रिएंट क्या है? What's going on? Why we are not responding? हम बोल नहीं सकते जब सारी क्लास बोल रही है साथ साथ। बोलो मेरे साथ साथ। What is nutrient? Organic and organic substance. What is nutrient? Organic or inorganic substance. Who is obtaining? Organism is obtaining from where? What purpose? Utilizing it for two major purposes. What are those two purposes? To use it as a source of energy and for biosynthesis of its body. कि मतलब हमें एनर्जी चाहिए, किन किन चाहिए? सिर्फ एक्सटर्नल एक्टिविटी के लिए चाहिए, इंटरनल के लिए भी चाहिए? मेटाबॉलिक, एक्सटर्नल के चाहिए, नहीं का राइट। पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, सुनने के लिए एनर्जी चाहिए। बैठे हुए हो, सुन रहे हो, मैम पढ़ा रही है, तुम सुन रहे हो, तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो क्या यूज कर रहे हो? क्या यूज कर रही है आपकी बॉडी इस टाइम सुनने के लिए और मेरी बॉडी बोलने के लिए? न्यूट्रिएंट यूज कर रही है। और दूसरा काम क्या हो रहा है? रिपेयर। तुम्हारी बॉडी में क्या हो रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि प्यूबर्टी चल रहा है, सबका एडोलेसेंस चल रहा है, तो इस टाइम पे ग्रोथ स्पर्ट्स आएंगे। तो तुम्हारी बॉडी में क्या हो रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैम की बॉडी क्या हो रही है? पोस्ट कट्टी। तो मैम की बॉडी में क्या चल रहा है? रिपेयर चल। आर यू गेटिंग दिस? तो मेरी बॉडी के सेल्स क्या कर रहे हैं? रिपेयर कर रहे हैं। तुम्हारी बॉडी के सेल्स क्या कर रहे हैं? रिपेयर भी हो रहा है। रिपेयर कब होगा? जब चोट खा के होगी, जब इंजरी हो जाएगी, तो बॉडी सेल्स क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे। सिंपल स्क्वामस क्या करेगा? रिपेयर करेगा जब इंजरी हो जाएगी, राइट। और साथ साथ क्या हो रहा है आपकी बॉडी में? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है बेटा? बायो मतलब लिविंग, सिंथेसिस मतलब टू मेक। तो लिविंग कंपोनेंट्स के बनने को क्या बोलते हैं? बायोसिंथेसिस।
अगर वर्ड्स को समझोगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर बनना है एंड पेपर सबका सेम आना है, एग्जाम डे इस बार सबका साथ में होना है, उस पर तो कोई डिस्पैरिटी नहीं है। प्री बोर्ड तक अपने स्कूल का पेपर दोगे, बोर्ड्स के लिए तो सब एक साथ अपेयर करोगे। तो राइट फ्रॉम बिगनिंग मेक श्योर यू आर वर्किंग ऑन द कीबोर्ड। आप किस पे काम कर रहे हो? कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो। तो मुझे इसकी डेफिनेशन की कीवर्ड बताइए। फर्स्ट, न्यूट्रिएंट का कीवर्ड क्या है? है ऑप्टेन फ्रॉम दी सराउंडिंग्स। बात क्या है? सो Yes. can you head down, not looking at screen, write down the two definitions on your own? Can you do little bit of mind mapping for these two concepts about nutrition and nutrient? मत देखो गलत करो, थोड़ा कम लिखो, लेकिन खुद से देखो कि हमें कितना रिटेन कर पा रहे। Don't look on screen. Don't look on screen. Do it yourself. Do it yourself. Do mind mapping. कीवर्ड्स का ध्यान रखो और फिर चेक करेंगे कि हम कितना लिख पाए और कितना हमने मिस कर दिया। टेंथ क्लास स्टार्ट हो गई, मैं नॉट डूइंग प्री बुक है ना, मैंने मेंशन भी किया था। पर यूं जल्दी बेटा, अभी हम सीधे सेटल कर रहे हैं, जल्दी करेंगे। अपने टेंशन ब्रेक करो, गलतियों से भी मत डरो। पढ़ते टाइम गलती होती है, बट मेक श्योर कि गलती करने के बाद उसको इम्प्रूव करो। जैसे बुलवाया है वैसे सोचो, अब स्क्रीन पे नहीं देखना राध्या, सीधा आपने उस पर देखो, नोटबुक में। yourself 80% भी निकाल जाओगे तो इट्स अ गुड थिंग। डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स, माइंड मैपिंग इज इम्पोर्टेंट। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में मैं चाह रही हूँ आप जर्नी ऑफ फूड हमेशा इंक्लूड करेंगे। नो चार्ट देंगी जर्नी ऑफ फूड का। No mention which component of food act as a source of energy and which component of food helps in the biosynthesis of body constituents. And use the right words. Use the right words. No head up. No head up. Doctor का नाम 10th क्लास में आपके रिकैप्स ऐसे ही हुआ करेंगे बीच बीच में। You'll study one topic, you will do the mind mapping, then we'll cross check. Done?
Those who have done, please check it yourself. देखो कितना डिस्कस कर पाए हो, कितना आपसे मिस हुआ है. Check it yourself and be honest. Be honest, क्या मिस कर गए हो? पेंसिल रखो हाथ में. जो मिस कर गए हो उसको पेंसिल से लिखो, सो दैट आपको याद रहे कि मैंने ये चीज मिस कर दी थी. पेंसिल से लिखो मोहक. जो मिस्टेक हो रही है उसको पेंसिल से लिखेंगे. कुछ भी नहीं लिखना. ठीक है. Included the constituents that carbohydrates and fats are the sources of energy, whereas proteins, minerals, and salts are the sources of biosynthesis of the body constituents. कहाँ ध्यान है समृद्धि में? कहाँ ध्यान है? परियुल लिख लिया आपने? परियुल, अदिति, आराध्या, राइस, मम. Please check. Check it yourself. Just check. Have you included all the highlighted words? Yeah, teacher. कुछ से क्रॉस चेक करो. चेक फॉर बोथ द डेफिनेशन. जो मिस हुआ है उसको पेंसिल से लिखो. मिस हुआ है उसको पेंसिल से लिखो. No, this one. What about you, Arya? सन से क्या याद दिलाया था? प्रोसेस. केमिकल रिएक्शन. तो वो भी क्या है? एक प्रोसेस है. ऐसे याद रखा करो. छोटी छोटी चीजें होती है, अपने आप चीजें क्रिएट होता है. जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो आप चीजें अपने आप क्रिएट कर सकते हो. न्यूट्रिशन है तो वो एक प्रोसेस है. क्या आपने लिखा है टेकिंग इन फूड? क्या आपने लिखा है यूटिलाइजेशन टू प्रोवाइड एनर्जी, ऑल्सो टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? नाउ गो बैक टू द न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट में क्या आपने लिखा है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है? क्या आपने लिखा है कि वो अपना फूड और सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है और उसको देयर बाय यूज करता है दो कामों के लिए? व्हाट आर द टू पर्पसेस? Energy and biosynthesis of body constituents. बॉडी कॉन्स्टिट्यूट. ठीक है. छोटे छोटे एफर्ट्स एक एक्यूमुलेटेड एफर्ट बनाते हैं विच हेल्प यू टू शाइन ड्यूरिंग योर एग्जाम. बट उसके लिए आपको वो एफर्ट्स डालने होते हैं. हैव यू मेंशन दैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी? Carbohydrates are the instant source of energy, whereas fats are energy reserves. Fats are energy reserve. But proteins and minerals are the sources of biosynthesis of body constituents. क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये प्रिपेयर हो गया सबको? हैव यू प्रिपेयर किया? हो गया बेटा? हैव यू मेंशन्ड एवरीथिंग? सारे कीवर्ड्स पूरे हो गए हमारे? कुछ मिस हुआ? कोई बात नहीं. लिख लिया आपने? लिख लिया? समृद्धि कितना हुआ है बेटा? बाकी लिख लिया? डेफिनेशन दोनों की प्रॉपर लिख ली है? ओके.